हमेशा you will take the picture from the nose level? No. There are certain situations जहाँ पे you have to take the picture from low angle. Suppose जैसे अभी फिल्म आई थी ना बाहुबली एंड ऑल, उसमें क्या है all the pictures that is taken from the low angle. Why low angle? Because आप एक ऐसा इमेज क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हो ये सुपर हीरो काइंड ऑफ इमेज. तो सुपर हीरो मतलब आप अगर ऐसे नॉर्मल इंसान वाला दिखाओगे फ्रॉम द आई लेवल, देन वो वाला इफेक्ट आएगा ही नहीं. तो इसीलिए ऑल द इमेजेस व्हाट दे हैव टेकन फ्रॉम द लो एंगल. इसलिए आपको लगता है कि लाइक भाई ये कैसा फिगर है, ये हमारे बीच में से नहीं. अंडरस्टूड? जस्ट टू टेक ए पिक्चर आप लोगों को करना क्या है ना, यू हैव टू चूज ए प्रॉपर व्यू पॉइंट, देन यू हैव टू डिसाइड द हाइट. क्या इससे आपका काम खत्म हो जाता है? Even if this is applied to your mobile phone also. Whenever you are taking a selfie, whenever you are taking, whenever you are recording something with your mobile phone, या even if you are digital cameras. क्योंकि आजकल क्या है कि everyone is a filmmaker. Everyone is a filmmaker. In a second, lots of videos are uploaded to YouTube and all, other social networking sites. कितने videos viral होते हैं? It means you have the potential. You are the professional. तो यहाँ पे ये है कि भाई आपको जो है भीड़ से तो अलग होनी है. तो ये अलग ऐसे आप होंगे when you will learn the techniques कि भाई बाकी कोई भी कैमरा लेके कुछ भी शूट कर रहा है, but whenever I will capture something, my video will be different from others. आपको क्या लगता है हाइट के बाद what next? There are certain factors, जैसे मैंने बताया कि व्यू पॉइंट is one of the factor, then the height is another factor, then what next? Light बाद में आएगा. The next is what will be the distance? What will be the distance between your camera and the subject? कितनी distance होनी चाहिए? देखो, you all are aware about different types of shots and camera movements. आपको पता है ना? Extreme close-up है, medium close-up है, then medium shot. इस तरीके के you have variety of shots. Absolutely. अगर आप एक्सप्रेशन को रिकॉर्ड कर रहे हो, बट because सिनेमा रिप्रेजेंट्स रियलिटी, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ, फॉर द फ्रंट रो स्टूडेंट्स दे आर एबल टू सी माई मीडियम लॉन्ग शॉट, एंड जो बैक बेंचर्स हैं बिकॉज द डिस्टेंस इज मोर, दे आर एबल टू सी ए लॉन्ग शॉट या एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट. दिस इज द डिस्टेंस. तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इफ यू वांट टू क्रिएट ए क्लोजअप, then what will happen? You have to move closer towards the subject. But आजकल क्या है? All the cameras they are equipped with a zoom lens. What is the property of zoom lens? From anywhere, from any position, you are able to create a close-up, even if an extreme long shot. How? Because you are changing the focal length of the lens. आप उसको चेंज कर रहे हो. यहीं पे खड़े होकर आप किसी का क्लोजअप भी ले सकते हो, यहीं पे आप किसी का लॉन्ग शॉट भी ले सकते हो. But for professionals, whenever we shoot, we never use a zoom lens. We always prefer to use a prime lens. Even if you don't have a prime lens, then we always try कि हमारा जो zoom lens है, that should behave like a prime lens. हम एक ही focal length पे काम करते हैं. हमें क्लोजअप लेना है, we will move closer towards the subject. क्योंकि क्लोज तभी आता है. हमें एक मीडियम शॉट लेना है, देन वी विल मूव ए बिट फर्दर फ्रॉम द सब्जेक्ट, थोड़ा सा दूर चले जाएंगे. लॉन्ग शॉट लेना है, थोड़ा सा और दूर चले जाएंगे. दिस इज द फॉर्मूला. ऑल द प्रोफेशनल फिल्म मेकर, दे ऑल द सिनेमाटोग्राफर्स, दे यूज दिस फॉर्मूला. आप उनके क्लोजअप में देखोगे कि उनके क्लोजअप दे विल नेवर ट्राई टू क्रिएट ए क्लोजअप जब उनका कैमरा ऑलमोस्ट 20 फीट डिस्टेंस में होगा. ऐसा नहीं करते. But always remember, there are certain deviations, certain exceptions. कुछ exceptions भी हैं. For example, suppose if you are into wildlife photography, आप बोलोगे वो सर आए थे एपीजे से, उन्होंने बोले कि क्लोजर, बेस्ट क्लोजर जब हम सब्जेक्ट के पास चले जाएंगे, ठीक है, and you are doing wildlife photography. मैं हमेशा कहता हूँ ना कि there is one photograph that is known as candid photograph. कैंडिड फोटोग्राफ होता है ना, मतलब विदाउट योर सब्जेक्ट इज अनअवेयर दैट यू आर कैप्चरिंग ए फोटोग्राफ. तो उससे क्या होता है कि यू ऑलवेज गेट द रियल एक्सप्रेशन.
बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इफ यू विल फॉलो माई रूल व्हेन यू आर मेकिंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, तो वहां पे टाइगर के सामने जाके उसके पास जाके बोलोगे कि ओके आई वांट टू टेक ए क्लोजअप, क्योंकि इसमें ना आई विल गेट द बेस्ट, बेटर देन द बेस्ट एक्सप्रेशन, वो कभी होगा ही नहीं। और वो क्या बोलेगा, बोलेगा कि बेटा ये इसका आखिरी ख्वाहिश है, तो मैं ऐसा एक्सप्रेशन दूं, यू नो व्हेन वी से चीज या स्माइल, हम क्या करते हैं, ऐसे खड़े खड़े ऐसे कर देते हैं, बट वहां पे क्या होगा, बोलेगा यार ये इसका आखिरी ख्वाहिश है, इसको मैं थोड़ा सा ढंग का पूरा कर दूंगा, तो वो ऐसा एक्सप्रेशन देगा बेटर देन कैंडिड फोटो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मैं आपको कंपोजिशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि व्हेनेवर यू आर टेकिंग इवन इफ योर सेल्फी या कुछ भी आप ले रहे हो, तो वहां पे यू शुड फॉलो दिस रूल। उसके बाद एक रूल ऐसा भी है, द लुकिंग स्पेस, ये भी है ना, इफ आई एम लुकिंग टुवर्ड्स माय लेफ्ट, मैं अगर इधर देख रहा हूँ, so you should always give space in front of the subject, not behind the subject. If I am looking towards right, then you should give more space towards right. ये looking space के बाद एक होता है head space, तो ये बहुत चीजें मैं थोड़ा सा जल्दी इसको करके जा रहा हूँ। एक होता है head space. What is head space? Head के ऊपर जो space होता है, पुराने जमाने में मतलब अभी भी ना, whenever my head of the department of film institute, जब वो मेरे को बुलाते हैं कोई भी वीडियो कुछ बनाने के लिए, आई ऑलवेज फॉलो रूल ऑफ थर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे को वही सिखाया। जब हम उनसे बाहर हो जाते हैं ना, आई ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक दैट रूल ऑफ थर्ड्स, बिकॉज द मीडियम हैज बीन एब्सोल्युटली चेंज्ड यार। अभी क्या, वो उनके जमाने में फिल्म हुआ करता था, फिल्म मतलब बिग स्क्रीन, तो इतने बड़े स्क्रीन में यू शुड फॉलो रूल ऑफ थर्ड। नाउ टेलीविजन, television is known as medium of close-ups. Why medium of close-ups? Because it's a very small screen. And अभी क्या है, मोबाइल फोन्स, उससे भी और छोटा, तो इसीलिए we don't follow rule of thirds. हम तो कहते हैं कि हेड के ऊपर स्पेस नहीं होना चाहिए। And it depends upon the photographer. मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक एब्सोल्यूट रूल है भाई यही हमें फॉलो करना। जैसे समटाइम्स यू नो, जब भी आप फोटोग्राफ कैप्चर करते हैं, when mobile was not invented, we always try to take horizontal pictures. ऐसे लेते हैं ना, हमारा कैमरा जो होता है वो we try to capture photographs like this horizontally, but जब से मोबाइल आया है वहां पे we are trying to capture vertically. Why? ना, because ये जो मोबाइल का स्क्रीन है, हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो ऑडियंस है फुल स्क्रीन करने में वो अपने मोबाइल पे से निकाले, फिर ऐसे करे, फिर ऐसे करे, ऐसा नहीं भाई, vertical. This is the medium for mobile. I always say कि you should always try to understand the medium. हर medium का एक characteristics होता है. Then you have to behave according to that medium. उस medium के accordingly you have to behave. Even if you know when you are making a film for YouTube, then you have to be different. Whenever you are making a film for television, you have to be different. जब आप फिल्म के लिए कोई शूटिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको different होना पड़ेगा. You have to understand the difference. तभी जाके आप इस तरीके का अच्छा काम कर सकते हो। Understood? Is that clear? मैंने थोड़ा सा कंपोजिशन के ऊपर बात किया। मैं कभी भी वो नहीं कहता, बुक्स में लिखा है, okay, can anyone tell what is composition? ये कंपोजिशन होता क्या है? जब भी आप फिल्म बनाते हो, जब भी आप मोबाइल में कुछ भी शूट करते हो, फ्रेम के अंदर जो भी चीजें हैं उसी को करते हो। और किताबों में ये लिखा है कि अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स within the four walls of the frame in a proper order, that is known as composition. नहीं है, बट मेरे लिए क्या पता है, मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। For me, composition means what to include and what to exclude within that frame. उस फ्रेम में मेरे को क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, that decision, that is known as composition. First of all, I will decide कि ये चीजें मेरे फ्रेम में जाएगा. Then next is I will arrange those elements in a proper order, in a proper sequence. जब उसको मैं उसी तरीके से बनाऊंगा, then मेरा जो रिजल्ट होगा वो सबसे अच्छा होगा। समझ में आया कि किस तरीके के मैंने छोटे मोटे जो चीजें थे अपार्ट फ्रॉम बुक्स, उसके ऊपर हम बात करें। क्लियर? ओके, coming back to this is about camera and all, how to place the camera, how to decide the height of the camera, then how to decide the distance of the camera, and this is for all the filmmakers irrespective of the mediums. देखो ये सारे जो रूल्स हैं
दैट विल नेवर चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ओनली द टेक्नोलॉजी वो चेंज हो जाएगा। फिल्म वाले कैमरे से हम लोग डिजिटल में आ गए, डिजिटल से अभी मोबाइल में आ गए, इस तरीके के डिफरेंट कैमरेज में हम लोग आ गए, बट द रूल ऑफ फिल्म मेकिंग दैट विल नेवर चेंज, वो कभी चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग। आई हैव ऑलरेडी told you about the eagle story that was completely different, कुछ नहीं है, बिल्कुल झूठ चीज को लेके we tried to create a story and see the impact। लोगों को ऐसा लगता है, जब भी मैं क्लास में दिखाता हूँ, हर किसी को ऐसा लगता है कि भाई ये ईगल कितना मेहनत करता है, पर जबकि उसके लाइफ में ऐसा कभी कुछ होता नहीं। ओके, आप में से किसी ने दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुनी है? ऑब्वियस वही था कि एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। क्यों क्यों कहते हैं इसको दुनिया की सबसे छोटी स्टोरी? व्हाट इज स्टोरी? स्टोरी क्या होता है? मैसेज, मैसेज तो दैट इज द कंक्लूजन, लाइन ऑफ इवेंट्स। वेरी गुड। हमेशा एक एरिस्टोटल का एक स्ट्रक्चर है अबाउट द स्टोरी, दैट इज in a story you must have at the beginning, जहाँ पे you will introduce the characters, then in the middle you have to create the conflict, and at the end you have to give the resolution। ये 3 act structure है। कहानी के शुरुआत में जो है आप अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दो, बीच में कंफ्लिक्ट कर दो, एंड टुवर्ड्स द एंड आप अपनी रिजोल्यूशन दे दो, and then you have n number of permutations and combinations। कभी-कभी फिल्मों में कोई क्लाइमेक्स से शुरू करता है, कोई कंफ्लिक्ट से शुरू करता है, वो कहीं से भी कुछ भी शुरू कर सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि एक था राजा, एक थी रानी। इट मींस यू हैव इंट्रोड्यूस्ड द कैरेक्टर, दोनों मर गए, दैट्स द कंफ्लिक्ट, दोनों मर गए, खत्म कहानी, इज द कंक्लूजन। एक स्टूडेंट है आपके जैसा, उसने बोला कि नहीं सर, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ये दुनिया की सबसे छोटी स्टोरी नहीं है। उसने ये बताया, एक बुढ़िया जो बचपन में मर गई, उसने बोला कि एक बुढ़िया जो बचपन में मर गई, मुझे बोला ये सर है, ये सबसे छोटी स्टोरी है। बोला कि देखिए इसमें मैंने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया, आप मना भी नहीं कर सकते, बचपन और मर गई भाई, वो हो गया भाई क्लाइमेक्स। तो इस तरह के बेसिकली क्या होता है कि फिल्म मेकर को जो होता है ना, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करना होगा। ओके, कमिंग बैक टू व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लव स्टोरी इन दिस वर्ल्ड? शॉर्टेस्ट लव स्टोरी, मैंने क्या बताया कि दुनिया की सबसे छोटी सी लव स्टोरी। ओके, आई विल शो यू 5 डिफरेंट वीडियोज मेड बाय स्टूडेंट्स, आपके जैसे स्टूडेंट्स ने बनाए इन डिफरेंट वेज। हर किसी का डिफरेंट अप्रोच, अलग अलग तरीके से उन्होंने बनाया। पहला स्टोरी ये है, एक लड़का बैठा हुआ है और एक लड़की आके बैठ गई, लड़के के मन में लड्डू फूटा उस लड़की को देख, ठीक है। लड़के ने बोला हाय और लड़की ने बोली हाँ जी भैया। Representing the story, because you all are so creative। अगर आपको कोई एक थीम दे दिया जाए ना, उसके ऊपर you can make n number of films। इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हो भी चुका है। बड़े सारे फिल्म मेकर्स क्या करते हैं कि एक ही थीम को लेते हैं and they try to create different stories। एक ही थीम, ये एक स्टोरी मैंने दिखाया, इसको एक दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स यही चीज उसको उन्होंने अलग तरीके से बनाया। यू जस्ट सी, इससे भी और छोटा।
आर डिफरेंट प्रॉप्स के साथ इसको बनाना। आई विल शो यू अनदर फिल्म। गॉट द मैसेज इस फिल्म में। मतलब ये स्टूडेंट्स डिफरेंट वे में उसको ट्रीट कर। मुझे बोला कि मेरे पास गाड़ी बंगला सब कुछ, इनमें से कुछ भी नहीं। ये तो इसके बाद और एक फिल्म में दिखा, दिस इज एक्टिंग, ये वाला जो चल रहा है। पहले आके वो जो है लड़का आके लड़की को बोलता है आई लव यू, तो लड़की ने थप्पड़ मारते हुए ये बोली, क्या बोला तूने? तो उसके बाद लड़के ने थप्पड़ मार के ये बोल रहा है, जब तू सुनी ही नहीं थी तो थप्पड़ क्यों मारी? ठीक है, तो ये है। उसके बाद मैं और एक फिल्म दिखा रहा हूँ। प्यार से लेके मर्डर तक सब दिखा दिया 8 सेकेंड्स के। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। देखो बड़े सारे लोगों को क्या होता है, मैं आपको बता दूं, दे ऑलवेज ट्राई टू बी डिफरेंट, बट मैं उनको कहता हूँ इतनी ज्यादा डिफरेंट होने की कोई जरूरत नहीं है ना। जस्ट रिसेंटली आई सॉ फ्यू स्मॉल वीडियो, स्मॉल फिल्म ऑफ 10 सेकेंड्स ईच, 10 सेकेंड्स। उसमें क्या था पता है? एक फिल्म ऐसा था कि एक बंदा लेटा हुआ है डोनेटिंग द ब्लड, और वही बंदा ऐसे क्लिक होता है टेकिंग द ब्लड, और उसके बाद मैसेज आ गया। 10 सेकंड्स की फिल्म कि इफ यू विल डोनेट देन व्हेन यू नीड देन यू विल गेट इट फ्रॉम द ब्लड। छोटा सा, मतलब कुछ नहीं है इसमें, बस सिर्फ 2 शॉट्स में। उसके बाद एक वीडियो मैंने देखा जो बाथ टब होता है ना, तो वहां पे जस्ट टू फिल अप दैट बाथ टब few ladies they are coming and जो घड़े होते हैं ना, उससे कम से कम 8-10 घड़े से जो है वो उसमें पानी भर रहे हैं। और मैसेज ये आ रहा है कि जिससे आप नहाने की कोशिश करो, ये 10 लोगों के घर की प्यास जो है ना वो बुझा रहा है। दिस ऑन सेव वर्ड। तो ये बेसिकली यही है कि लाइक यू हैव टू क्रिएट योर थर्ड आई। तीसरे नयन से आपको देखना पड़ेगा। You have to open up your sixth sense. जब आप अपने sixth sense को अप्लाई करेंगे, then only you will be able to create the difference. जैसे शिवखेड़ा कहते हैं ना, winners don't do different things, they do things differently. अलग तरीके से करना होता है, चीजें वही होती है। तो फिल्म मेकर्स वही काम करता है, चीजें वही होती है। But sometimes what we do, we heavily rely on technology. हम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करते हैं, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी हैज बिकम सो यूजर फ्रेंडली, इट हैज डेमोक्रेटाइज्ड द मीडियम। हर किसी के पास आज टेक्नोलॉजी है, ओनली रिक्वायरमेंट इज द कंटेंट। आपके पास कंटेंट नहीं है यार, हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास DSLR कैमराज है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, यू नो हाउ टू मेक फिल्म्स, बट यू आर सॉर्ट ऑफ आइडियाज। आपके पास आइडियाज ही नहीं, मैं किसके ऊपर फिल्म बनाऊं? Sometimes what we do, now we try to copy. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई एक बड़ा फेमस कोट मैंने पढ़ा था, किसी ने बताया कि when you are copying from one, that is known as plagiarism. If you are copying from many, that is known as research. तो हमारे जो फिल्म मेकर हैं, हमारे फिल्म मेकर को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि you watch lots of films, don't copy them, only take the inspiration. Only take the inspiration. You have to be inspired from others' work. दूसरे के काम को देखिए, उसको हुबहू कॉपी करने की कोशिश मत करिए। You only take the inspiration and you try to create your own story. तभी तो जाके मतलब अच्छे से आप जो है फिल्म बना पाएंगे। लेकिन इसके लिए सोचना पड़ता है। Sometimes what happen कि स्टूडेंट्स आते हैं विदाउट थिंकिंग। उनको तो स्टूडेंट को जब आइडियाज की जब बात करते हैं ना फिल्म मेकिंग का, उनको ये लगता है कि ओके ऐसे जाएंगे सिगरेट शॉप के पास,
वहीं पे ओके यार एक प्रोजेक्ट बनाना है, इसके ऊपर बना ले। फिर वो आ जाएंगे टीचर के पास, बोलेंगे सर पता है एक आइडिया है, पता नहीं सर अच्छा तो नहीं लग रहा है, बड़ा बुरा है यार, बड़ा घटिया है, सुना तू? मैं तो कहता हूँ भाग जाए यहाँ से, जब तेरे को ही अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरा टाइम वेस्ट करने क्यों आया? तो खुद ही पहले बोल दिया कि यू आर नॉट कंसेप्ट विथ योर लाइक यू आर नॉट कन्विंस्ड विथ योर आइडियाज, और आप आके टीचर के टाइम खराब कर रहे हो। सुना दो अच्छा नहीं फिर भी मैं सुना देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आपको आइडिया के साथ रहना पड़ेगा, जब आप रहोगे then only you know आपकी जो फिल्म है that will be different from others, नहीं तो वो बाकियों के जैसा ही फिल्म हो जाए।